copyright does not have to be registered. You don't have to register a copyright to be able to seek copyright protection. अब आपको तो मालूम ही है कि कंप्यूटर प्रोग्राम itself is entitled to copyright protection under the act as a form of literary work. तीसरा, हमारा कोर्स ज्वाइन करो because ultimately practice और theory के बीच का गैप भी ब्रिज करना important है. Hi everyone, I Kritika Goyal welcome you to a special session with Live Law Academy, the Law Discourse, where law meets real life and theory turns into practice. So tell me, you must have studied Copyright Act in your law colleges, but do you know how it actually applies in the real world? Today, we change that. Joining me today is someone special. He's not just brilliant on paper, but he's done the work. Advocate Rahul Bajaj, a Rhodes Scholar, IP and constitutional law expert, an advocate at the Supreme Court of India, and also clerked with Honorable Justice D.Y. Chandrachud. Let's begin, sir. Yes. Thank you very much, Kritika, for having me here, and it's very great to be with all of you today. Thank you, sir. Sir, you've worn so many hats. Rhodes Scholar, IP law expert, constitutional law expert, clerked with Honorable Justice Chandrachud. Yes. If we have to go back to the beginning, what made you enter the field of law? So, Kritika, I do not come from a family of lawyers. I am a first generation lawyer. And, when I was in school, I was very good in the social sciences relative to the STEM subjects, such as science, technology, those kinds of subjects, like history, political science, economics. These were the areas that I excelled in as opposed to science and math, which is what a lot of lawyers will tell you. So therefore, that was definitely one key strength which I had, which I thought I could leverage more effectively through a career in the law. The second was, the fact of having faced rights violations myself as a person with a disability, and using and knowing how the law is the one thing, that everyone is bound by, like howsoever high they may be, as we learn in law school. But practically being able to apply that, right, in terms of the challenges I faced, also made me realize how valuable being a lawyer could be. So those were the two factors really that led to me to me studying law in the first place. Absolutely, sir. That makes sense. So Oxford law, sir, and then IP law. Yes. How do you perceive that intellectual property law has changed with this journey through so many years of practice? Yeah. So my, first interface with IP law really happened when I pursued Professor William Fisher's online course on copyright law, which is taught by the Harvard Law School, called Copyright X, right? So that course sort of first made me realize how copyright is not just something which permeates every aspect of our life, but also is very complex and nuanced, and we'll deal with some of that complexity as we move forward. So that was the first step. Then I got involved with Spicy IP when I was in college, and that was a leading blog on IP law, and perhaps one of its kind initiatives in India. And I wrote for them for a year. It was very rigorous because each week you had to put out a post. So you had to stay really updated with what was happening in the IP world. And part of it was, of course, copyright law oriented. And then, as you mentioned, when I went to Oxford, in Oxford, I was taught IP law by Professor Justin Pillai and Dave Gangji. And then my MPhil thesis was also on patent law and the right to health. So it also, exposed me to the interface of IP and human rights, which is an extremely important area. And then on coming back, one of the things I did was to work with an IP law firm called Lira Law, where I was really exposed to the nuances of practicing IP on a day-to-day basis, like what are the client pressures, that you need to navigate, how do you make out a good case in court when arguing IP matters. So that's kind of been my journey with IP law since the last 10, 11 years.
Right. So before we began the interview, we were discussing actually one of the disability cases. Yes. So अगर आप बता पाओ थोड़ा सा उसके बारे में, I think that will be Yeah. something lovely. Yeah. So within IP, so I should also mention that apart from IP, the other area that I'm really invested in is disability rights law, right? So I run my Right. own NGO called Mission Accessibility, and we do a lot of cases on behalf of people with disabilities. इसमें वन इंटरेस्टिंग केस जो रेलेवेंट है आज की डिस्कशन के लिए इज ऑन कॉपीराइट लॉ एंड डिसेबिलिटी. तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर आई जस्ट टेल यू इन ब्रीफ व्हाट द केस इज अबाउट, Yes, एंड sir. इट्स काइंड ऑफ क्वाइट यूनिक इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट और परहैप्स इवन ग्लोबली, कि जो कॉपीराइटेड बुक्स होती हैं दे आर समटाइम्स इन हार्ड कॉपी फॉर्म. जी. And if somebody is blind, as my client was and as I am, you need the book to be made available to you in soft copy form, right? ताकि Right. आप खुद अपने सॉफ्टवेयर के साथ उसको सुन सको. Yes. अब होता ये है कि कॉपीराइट ओनर्स हैव द फियर कि अगर हम ये बुक इसको सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल करा करके देंगे, so he may just go ahead and share it with the public at large, and Right. therefore our business will get jeopardized. Now on this the law is very clear, and India is a front runner in that regard. हमारे law में 2012 में एक amendment आया था section 52(1)(ZB, जो एक फेयर डीलिंग प्रोविजन है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप एक एक्सेसिबल फॉर्मेट कॉपी बना रहे हो किसी डिसेबल्ड इंसान के लिए, तो वो कॉपीराइट वायलेशन नहीं कहलाया जाएगा. और इसमें ग्लोबली भी एक मैराकेश ट्रीटी है, बट उस पब्लिशर ने सुनी नहीं. दे केप्ट सेइंग कि नहीं नहीं, आप 20 लाख का बॉन्ड बना के दो तभी हम आपको रिलीज करेंगे. तो अल्टीमेटली वी हैड टू टेक इट अप लीगली. नोटिस वगैरह भी भेजा, उससे कुछ काम हुआ नहीं. तो जो चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, वहाँ पे हमको उस पर केस करना पड़ा. एंड जब वो केस किया तब इमीडिएटली द publisher then made the book available on Kindle even before the first hearing, just because the case was filed. तो उस चक्कर में this person was able to access. अब इसमें भी अभी ये एक वन ऑफ केस ही है. एक्चुअली द लॉ हैज टू डेवलप ऑन दिस, Right. कि publishers have an obligation to make it available in accessible formats. But ये एक केस है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है. Absolutely, sir. So most of the law students, they've studied Copyright Act in their colleges, जी. but they don't actually know how it is applicable in the real world. हाँ. कि कोर्ट जाके क्या हो रहा है एक्चुअली में बिल्कुल. काम. जी. So why do you think that there's a gap, and what can we do to bridge it? Right. Maybe some light on that. Yes. So Kritika, this is not a problem peculiar to IP or copyright law. It is a general sentiment that is often expressed, by lawyers when they start practicing. कि college में जो पढ़ा था, that was so theoretically, Right. that was so remote and theoretically oriented compared to the actual practice of law. The reasons for this are many. One key reason is कि अब जैसे हमने केसेस पढ़े, ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक का केस पढ़ोगे आप रामेश्वरी फोटोकॉपी का केस पढ़ोगे, 1000 केस पढ़ोगे डिफरेंट. बट एक्चुअल में जब आप एक केस आर्ग्यू कर रहे हो एक क्लाइंट के लिए, या फिर इनिशियल डेज में इमीडिएटली तो आप आर्ग्यू नहीं करोगे. पहले तो आप ड्राफ्टिंग करोगे, आप कोर्ट का प्रोसेस समझोगे. तो इसमें कोर्ट प्रोसेस की लोगों को जानकारी नहीं होती है, Right. अनलेस किसी ने बहुत डिलीजेंटली इंटर्नशिप की हो और ये समझने की कोशिश की हो. क्योंकि हमारे कोर्ट्स में मैटर लगवाना, गेटिंग अ मैटर हर्ड, मेंशन क्या करना होता है, हाउ टू प्रेजेंट इट इन अ वेरी सिनॉप्टिक फॉर्म, बिकॉज जजेस के पास टाइम बहुत कम होता है. You may have the best arguments, but if you can't present it within that 2-minute, 3-minute window, it is valueless. Correct? Absolutely. तो वो सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है. और अब जैसे आईपी डिवीजन आ गए हैं हाई कोर्ट्स में, दिल्ली में जैसे है, सो देन इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर एक हाई कोर्ट के सामने आप कर रहे हो तो एक ज़्यादा रिगर होता है जो जजेस एक्सपेक्ट करते हैं. सो इट्स इवन मोर क्रिटिकल टू नो ऑल दीज प्रोसीजरल स्किल्स. अब जैसे आईपी में अगर हम कॉपीराइट में एक एग्जाम्पल लेते हैं, जॉन डो ऑर्डर्स जो होते हैं, Right. वो ये रहता है कि जब आपको कोई मालूम नहीं है कि कौन स्पेसिफिक डिफेंडेंट है,
जो इन्फ्रिंज कर रहा है, मतलब हजारों लोग हैं, ठीक है, मान लो कोई किताब है आपकी, आप एक पब्लिशर हो और somebody is making your books available in a pirated form, तो इसमें आपको एक डायनामिक इंजंक्शन सीक करना पड़ेगा कि आगे जाके कोई भी और ये कंटेंट अवेलेबल कराए, सो आई शुड इमीडिएटली बी एबल टू गेट रिलीफ अगेंस्ट अननोन जॉन डोज, या हिंदी में जिनको अशोक कुमार इंडिया में जो बुलाया जाता है जी। तो ये चीज काफी कम लोगों को मालूम होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत होता है कॉपीराइट में, तो इस तरीके की नुआंसेस समझना जरूरी है। So can I say that this is जी। just a, can I say that every publisher should actually go ahead and get this injunction every time they publish a book? Because I don't know how else to stop piracy or something. Is it necessary for every publisher, every author, every owner, for a work which is published to just go ahead and do it as a matter of practice? Not in the abstract, कृतिका। Okay. In the sense कि मान लो अब जैसे एक केस मैंने किया था when I was working in my law firm which involved a publisher which puts out textbooks, या फिर जो डाइजेस्ट्स होती हैं इंजीनियरिंग के लिए, राइट, जी। फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम, जैसे 21 उनको बोलते हैं, जहाँ पे फ्रॉम महाराष्ट्र वेयर आई कम फ्रॉम, कि 21 टॉप क्वेश्चन, बिकॉज हर सवाल इंसान हर टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेगा बच्चा, तो व्हाट आर द की थिंग्स, राइट। अब उन टेक्स्ट बुक्स को या उन डाइजेस्ट्स को थर्ड पार्टीज एंड समटाइम दे आर स्टूडेंट्स ओनली, करेक्ट, टेलीग्राम पे फैलाएंगे, व्हाट्सएप पे फैलाएंगे, यूट्यूब पे फैलाएंगे, राइट जी। सो जब आपको ये मालूम पड़ जाता है कि इस तरीके की चीज हो रही है, देन यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड इमीडिएटली एज सुन एज यू फाइंड आउट अबाउट इट, पहले तो ऑब्वियसली आप उनको डरा धमका के बोलोगे, सीज एंड डिसीज भेजोगे कि यार बंद करो, बट अगर नहीं हुआ वो, बिकॉज कोर्ट केस के भी बहुत पैसे लगते हैं, बहुत खज्जल खवारी होती है, तो अगर एमिकेबली रिजॉल्व हो जाए तो नथिंग लाइक इट, राइट, बट अगर नहीं होए, then in that case you need to go to court and obtain a dynamic injunction, right, ताकि उसका फायदा ये होता है, एंड दिल्ली में कि यूटीवी की जजमेंट है जस्टिस मनमोहन की, वेयर दिस प्रोसेस वाज फर्स्ट इवॉल्व्ड, इसमें ये कहा गया था कि जो इन्फ्रिंजर्स हैं या पायरेट्स हैं आजकल, इट हैज बिकम अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर, मीनिंग कि एक को आप हटाओगे तो दूसरा इमीडिएटली आ जाएगा, 10 और आ जाएंगे। तो इस चीज को टैकल करने के लिए जस्टिस मनमोहन जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं, उन्होंने ये मैकेनिज्म इवॉल्व किया था कि यू वुड इमीडिएटली देन जस्ट हैव टू गो टू द जॉइंट रजिस्ट्रार एंड मूव एन एप्लीकेशन, और वो अगर पहले आपको डायनामिक इंजंक्शन मिल चुकी है तो इमीडिएटली वो नए इस पे भी लागू हो जाएगा, ताकि फिर ये नहीं रहेगा कि पहले आप फाइल करोगे, फिर नोटिस इशू होगा, फिर हियरिंग होगी, जिसको महीने महीने लग जाएंगे। सो दैट वाज द होल आइडिया। और कभी कभी ये टाइम सेंसिटिव भी होता है, जैसे मान लो वर्ल्ड कप आ रहा है, ये बहुत देखते हैं हम कि वर्ल्ड कप के टाइम ये इस तरीके की पायरेसी प्रोलिफरेट करती है, तो जब तक खत्म हो जाएगा वर्ल्ड कप तब तक रिलीफ मिलेगा, तो उसका क्या फायदा है? सही बात है। तो इमीडिएटली यू नीड दैट ऑर्डर टू बी इशूड। Right, right, sir. So, having talked about this, so what is the biggest myth or any doubt someone has asked you over the years which you feel exists in the copyright law? जी, तो two immediately come to mind, madam. One is कि copyright does not have to be registered. You don't have to register a copyright to be able to seek copyright protection. ये हमारे एक बर्न ट्रीटी है, बर्न डिक्लेरेशन, जो जिसके which basically created this whole process, whereby now the legal position is कि the moment you write something down, you reduce something to writing, मान लो आपने एक बुक लिखी है, आपने एक पोएम लिखी है, आपने एक डॉक्यूमेंट्री का प्लॉट लिखा है, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, आइडिया एक्सप्रेशन डायकोटमी, उस पर मैं आऊंगा 2 मिनट में, बट सब्जेक्ट टू दैट द मोमेंट यू हैव रिड्यूस समथिंग इनटू राइटिंग, इमीडिएटली यू आर एंटाइटल्ड टू कॉपीराइट प्रोटेक्शन ओवर इट। तो मान लो कोई भी बुक पब्लिशर ने ये पाया कि उसकी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसने वो अपना कॉपीराइट जाकर के रजिस्टर करवाया हो कॉपीराइट ऑफिस में as a precondition to getting relief, जबकि ट्रेडमार्क
में या पैटेंट्स में ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। पैटेंट में आप किसी को सू नहीं कर सकते इन्फ्रिंजमेंट के लिए जब तक आपका खुद का पैटेंट रजिस्टर्ड ना हो। ट्रेडमार्क में भी भले पासिंग ऑफ के लिए टॉर्ट लॉ में आप कर सकते हैं, बट ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन होना इज अ प्री रेक्विजिट या फिर साइने क्वा नॉन जो हम लॉ में बोलते हैं। ठीक, तो ये एक मेजर डिस्टिंक्शन है कि कॉपीराइट में रजिस्ट्रेशन के बिना भी यू कैन गेट रिलीफ। दूसरा, the distinction between ownership of an object versus ownership of copyright needs to be recognized. अब मान लो आप एक जाकर के हैरी पॉटर एंड डेथली एलोज की किताब खरीदते हो, ठीक, राइट सर, तो दैट ओनली मीन्स कि यू आर द ओनर ऑफ द फिजिकल कॉपी ऑफ दैट बुक। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके कॉपीराइट ओनर बन गए। तो अगर कोई वो उसको कॉपी कर रहा है या इन्फ्रिंज कर रहा है जैसे भी है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। यू आर ओनली ओनिंग द ऑब्जेक्ट, नॉट द कॉपीराइट इन इट। तो वैसे तो बहुत हैं, बट ये दो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे लगा बताऊं आपको। Right, sir. I think these two myths have been busted for जी. all. So coming to the next question. Hmm. So do you think in this digital age, the Indian framework that we're following is sufficient? Or are we still somewhere in the olden times? Or is our law equipped to deal with what is coming for us? देखो, काफ़ी हद तक चीज़ें जो नई नई आजकल हम देख रहे हैं, 2012 जो अमेंडमेंट हुआ था कॉपीराइट एक्ट का, वो काफ़ी पॉजिटिव था। कंपोजर्स, परफॉर्मर्स के राइट्स क्लैरिफाई करने के लिए, जैसा मैंने बताया, ये डिसेबिलिटी वाले एक्सेप्शन के लिए, और भी जैसे क्योंकि होता क्या है कि कुछ कुछ एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस हो जाती हैं कभी कभी सिंगर्स के अगेंस्ट, परफॉर्मर्स के अगेंस्ट, तो उनको कर्व करने के लिए इट वाज एन इफेक्टिव स्टेप। बट वन की एरिया जहाँ पे द लॉ इज फॉलिंग शॉर्ट एज ऑफ नाउ इज AI एंड डीलिंग विद AI रिलेटेड डेवलपमेंट्स। अब जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में आपने तो सुना ही है, केस चल रहा है ओपन AI वर्सेस ANI का, right? Right, sir. Where the argument that ANI makes is कि हमारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो ओपन AI मेक अवेलेबल करा रहा है, ना सिर्फ वो, बट वो फेक न्यूज़ भी क्रिएट कर रहा है। इन द सेंस वो कोई चीज़ें खुद से बना रहा है, उसका LLM जो है, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल, बट एट्रीब्यूट वो कर रहा है उसको ANI को, मतलब इन द सेंस कि ANI से आ रहा है जबकि एक्चुअल में नहीं आ रहा। अच्छा, तो इस तरीके की चीज़ें भी एलिगेशंस की गई हैं, और इसमें फिर हजार तरीके के सवाल निकल के आते हैं कि जैसे एक तो कि AI का क्या इम्पैक्ट है न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री पे, राइट? हाउ डू वी स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू? बट एट द सेम टाइम ये भी है कि अभी AI में भी बहुत इनोवेशन हो रहा है, तो दैट इनोवेशन ऑल्सो वी डोंट वांट टू स्टाइफल। इन द सेंस ChatGPT या OpenAI तो मान लो बहुत बड़ी कंपनी है, बट कोई इंडिया में AI बनाएगा, स्मॉल बिजनेस, तो व्हाट पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट कैन दे यूज लेजिटिमेटली, और इस पे कुछ सेफगार्ड्स या कर्ब्स रखने ज़रूरी हैं क्या? तो ये सब चीज़ें, और डीप फेक्स का भी है। आगे जाके AI पे आप एक स्पेसिफिक सवाल भी जब पूछोगे तो मैं डीप फेक्स का एग्जाम्पल भी दूंगा कि वो भी एक एरिया है जहाँ पे बहुत ज़रूरी है लॉ को इवॉल्व करने की, एंड आई थिंक अमेंड भी होने की, टू बी एबल टू बी। तब तक तो जजेस जो हैं दे विल डू व्हाट दे कैन अप्लाइंग द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क बाय वे ऑफ एनालॉजी, बट गोइंग फॉरवर्ड वी मे नीड टू अमेंड द लॉ ऑल्सो टू कीप पेस विद दिस। Right, sir. So in the same breath, let's just take that question up right now. जी. So let's say that you've just talked about AI. What जी. are the core issues, or what are the numerous issues that we might just be dealing with after this? तो देखो मैडम, एक तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ओपन AI ANI वाले जो केस हैं, और ये इंडिया में ही नहीं है, इस पर मैंने एक डेक्कन हेरल्ड के लिए आर्टिकल भी लिखा है जो आपके लिसनर्स या व्यूअर्स जा करके पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने बताया है कि दुनिया भर में देयर आर मेनी केसेस। सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सू किया था ओपन AI को, और हर कंट्री में ये इशू आ रहा है, न्यूज़ पब्लिशर्स वर्सेस AI प्लेटफॉर्म्स, कि
वेयर डज द लाइन हैव टू बी ड्रॉन कि क्या कॉपी कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, करेक्ट। एक तो ये हो गया। दूसरा डीप फेक्स का ये है कि मान लो यू फाइंड दैट somebody is using your voice Right. and your name in a shot or a song that you find, ठीक है। एंड द फनी थिंग इज कि आपने तो वो गाया ही नहीं, आपने तो उसको बनाया ही नहीं, बट यूजिंग AI दे आर एबल टू क्रिएट व्हाट आर कॉल्ड डीप फेक्स। तो इस पे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। अनिल कपूर की जजमेंट है जिसके बारे में तो आप जानते ही हो, अभी रिसेंटली आतिफ असलम की भी आई है। तो बहुत सारे इस पे केसेस रहे हैं where AI is used to mimic somebody's name, voice, personality. तो इसको भी to keep pace with that we need to make sure that the law is suitably modulated. तो ये एक दो चीज़ें हैं जो AI से। हाँ, और तीसरा ये कि AI जनरेटेड IP, करेक्ट। अब जैसे मान लो ये डीप फेक वाला ही एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि इसमें एक तो ये हो गया कि यार ये नहीं होना चाहिए, तो वो एक तरीका हो गया। बट मान लो कोई जेन्युइन AI से इनोवेशन आ रही है, जैसे कि I once had a client who had approached me for advice. उनका ऐसा था, विदाउट रिवीलिंग एनी पर्टिकुलर्स, एक लैंग्वेज लर्निंग मॉडल के थ्रू based on some pre-existing algorithm, some new computer program got created. अब आपको तो मालूम ही है कि कंप्यूटर प्रोग्राम itself is entitled to copyright protection under the act as a form of literary work, correct? Yes sir. Now उसमें फिर ये इशू निकल के आया था कि LLM एक बंदे ने बनाया, ठीक, और जो इंस्ट्रक्शंस जो दे रहे हैं या फिर जो प्री एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम है वो दूसरे का है। तो अब ऐसे में डज A own the copyright, does B own the copyright, or does the LLM own it? इस तरीके के सवाल आए थे। तो हमको जो जितना बेस्ट बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क एज इट एग्जिस्टेड वी एडवाइज द क्लाइंट, बट इन चीजों में जेन्युइन एम्बिग्यूटी है हमारे लॉ में। So something also comes to my mind while talking to you about this. So very famous religious guru has just said that his images cannot be used. हाँ जी, सदगुरु का जो एग्जांपल है वो भी देखा है मैंने। हाँ जी, तो उसके अंदर से what do you think that is, can we copyright our own images in that way? Has he copyrighted his image, or is it linked to the AI conundrum? Is our law there to safeguard this? देखो मैडम, ये ज़्यादा पर्सनालिटी राइट्स के डोमेन में आ जाती है ये चीज़, क्योंकि लॉ ये इवॉल्व हुआ है हमारे देश में। इस पे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि दलेर मेहंदी का केस था एक काफ़ी फेमस शुरुआत में, जिस पे जस्टिस रविंद्र भट्ट का जजमेंट था। जब एक डॉल आई थी जो उसको बटन दबाने पे, जैसे दलेर मेहंदी के गाने हैं वो गाने गाती थी उस तरीके के, या फिर दलेर मेहंदी की आवाज निकालती थी जी। वो एक छोटा सा की चेन था शायद, हाँ, जिसको दबाते भी थे, था, डॉल भी थी जी, ठीक। तो उसमें कोर्ट ने पर्सनालिटी राइट्स जो यूएस में कॉन्सेप्ट एक बनाया गया था, उस केस से निकाल करके इंडिया में भी उसको लाया कि ये आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है जब आपका नाम या आवाज, इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। एक तो कि आपका नेम, वॉइस, सिग्नेचर ऐसा कुछ यूज हो रहा हो, और दूसरा वो आइडेंटिफाइबल हो आपसे, इन द सेंस कि आपका मतलब एक यू एंड आई फॉर एग्जाम्पल, वी आर नॉट सेलिब्रिटीज, राइट? तो हमारा कोई यूज कर भी लेगा तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू पर्सनालिटी राइट्स प्रोटेक्शन एज पर द लॉ। बट अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसका नाम या वॉइस आइडेंटिफाइबल है, कि मतलब देख के कोई समझ पाए कि यार अच्छा ये अमिताभ बच्चन है या व्हाटएवर, तो in that case then they are entitled to protection. So what Mr. Sadhguru is alleging, that his name, voice, etc. is being used, right, given that he enjoys that kind of popularity, he is well within his rights to claim protection under the law as it exists against the misuse of his personality. Right sir. Based on the law of tort जो पर्सनालिटी राइट्स वाला हमारे देश में अभी तक डेवलप किया है। बट कॉपीराइट या ट्रेडमार्क लॉ में हमारे केस हमारे देश में इस पे नहीं है कुछ अभी के लिए।
Right, sir. Hmm. So now let's say that I am a law student जी and I want to start practicing Copyright Act. ठीक। So what should I expect? What should my regular day look like? देखो, पहली चीज़ तो ये है कि थोड़ा आईपी के बारे में पढ़ना और लिखना इम्पोर्टेंट है राइट फ्रॉम द टाइम दैट यू आर इन लॉ स्कूल। तो आप कॉपीराइट लॉ से रिलेटेड एक तो पहले फंडामेंटल शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो कोई अच्छी सी टेक्स्ट बुक निकालो, जैसे मैंने वीके आहूजा से पढ़ा था व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ठीक। एंड इट वाज वेरी गुड एंड डिटेल्ड इन टर्म्स ऑफ नोइंग द केस लॉ एंड यू नो वेरियस ग्लोबल प्रैक्टिसेस। तो एक तो वो फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। दूसरा, ब्लॉग्स पढ़ना इम्पोर्टेंट है। जैसे इंडिया में स्पाइसी आईपी की बात हुई है, ग्लोबली एक आईपी कैट ब्लॉग है जो मैं पढ़ता हूँ, कि जो भी कोई डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में केस लॉ आ रहा है या डेवलपमेंट हो रही है इन दिस एरिया, कीपिंग अब्रेस्ट विद दैट। तीसरा, हमारा कोर्स ज्वाइन करो बिकॉज अल्टीमेटली प्रैक्टिस और थ्योरी के बीच का गैप भी ब्रिज करना इम्पोर्टेंट है। चौथा, इंटर्नशिप्स आर इम्पोर्टेंट इन दैट आईपी डोमेन। जैसे आई हैड इंटर्न एट आनंद एंड आनंद व्हेन आई वाज इन लॉ स्कूल, राइट। Yes, sir. तो उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ आप इंटरेस्टेड हो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं विच कैन इक्विप यू टू परफॉर्म वेल when you start off your career. Right, sir. Thank you for these recommendations. We will surely look at them. So, let's say that, so can you tell us any case or any issue that you dealt with? And this is on a lighter note, sir. जी So, any case, any issue which made you go, yes, this is what law was, this is why I joined this field. तो देखो, एक तो जो मैंने आपको वो वाला बताया है, यू नो, कॉपीराइट एंड डिसेबिलिटी वाला, दैट इज़ अ कॉज विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो वो तो एक डेफिनेटली है, क्योंकि उसमें ये चीज़ निकल के आती है कि लॉ पे प्रोटेक्शन होने के बावजूद कि आप नहीं रोक सकते किसी को एक्सेसिबल कॉपी बनाने से, जस्ट कॉपीराइट को एज अ वेपन यूज़ करके आप अगले को रोक नहीं सकते। तो एक तो ये है। दूसरा, एक मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग केस पर्सनालिटी राइट्स पे किया था, विच वाज इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ द पर्सनल फीचर्स ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे क्रिकेटर हो गए मेजर मेजर, ऑन एनएफटी जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, उस पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक स्पोर्ट्स फैंटेसी लीग, Okay. राइट। Right. उसमें कैसे आप किसी के पर्सनल एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते। हमारा केस था कि अगर आप कर भी रहे हो तो क्रिकेटर्स को ये अधिकार नहीं बनता कि वो उसके लिए पैसा मांगे या लाइसेंस मांगे, क्योंकि इस पे काफ़ी अच्छे जजमेंट्स भी हैं। जैसे एक हॉट न्यूज़ केस है, मैं आपको बताऊं, एक्यूवेट इंटरनेट सर्विसेज वाला, जी। जिसमें ये कहा गया था, जैसे पहले के दिनों में ये हुआ करता था, आजकल एसएमएस इतना कोई यूज़ नहीं करता, बट अब मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है तो एसएमएस में अपडेट्स आएंगे लोगों को कि फलाना ने, जी, आते थे। हाँ, तो इसको हॉट न्यूज़ केस बुलाया जाता है कि ये हुआ वो हुआ, इसने सेंचुरी मारी, इसने इतने रन मारे, और उसमें हो सकता है कि उनका नाम भी हो, उनकी फोटो भी हो कभी कभार। तो इन चीज़ों को कोर्ट ने कहा था कि ये पब्लिक डोमेन में है इंफॉर्मेशन। तो हमारा भी केस वैसा ही था। अब अल्टीमेटली वो केस डिसाइड नहीं हुआ बिकॉज सेटल हो गया था, यू नो, सेटल इन द सेंस जो रेलिवेंट कॉज ऑफ एक्शन था वही हट गया था बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स। तो कोर्ट का कंक्लूसिव जजमेंट नहीं आ पाया इसमें, बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग केस था। So you're leading the copyright mastery course जी with Live Law Academy. So what are you most excited to teach there? What is the vibe going to be like? Who all can join this course? तो 3 सवाल पूछे आपने कि यू नो व्हाट एम आई लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो उसमें तो ये है कि मेनली द आइडिया विल बी to kind of distill and crystallize various concepts in copyright law in a manner which is relatable to a large section of people. सिर्फ ये लॉयर्स या लॉ स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेड नहीं है। आप एक कंटेंट क्रिएटर हो यूट्यूब पे, आप एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, आप एक शेफ हो
जो अपना कुक बुक्स लाता है, उन लोगों के लिए भी ये रेलेवेंट है फॉर देम टू नो कि मेरे चीज़ों पे क्या प्रोटेक्शन है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ उस पर। एंड अगर आपको मालूम ही नहीं होगा तो यू वोंट इवन रियलाइज कि इसमें कॉपीराइट भी लागू हो सकता है ऑन दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट और दैट पर्टिकुलर थिंग विच यू हैव मेड। तो जो भी कोई इंसान कंटेंट क्रिएट कर रहा है उनके लिए रेलेवेंट है, बट एट द सेम टाइम लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, बिकॉज देयर विल बी इनफ फॉर देम आल्सो टू गेट गुड वैल्यू आउट ऑफ इट एंड लर्न समथिंग न्यू विच दे कैन देन डिप्लॉय। दूसरा क्या होता है, जैसे लास्ट टाइम हमने एक ट्रेडमार्क लॉ पे किया था, तो वी रियलाइज दैट वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स वाज अ ग्राफिक डिजाइनर, राइट? एंड ही मेड अ लॉट ऑफ दीज डिजाइन, जिस लोगोस, और वो जानना चाहते थे कि इस पे प्रोटेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा। तो हर बार वो नए नए सवाल आते थे इस चीज पे। फिर उसके बाद एक जनरल काउंसिल थे एक बड़े कंपनी में, जिन्होंने वैसे तो मतलब कॉर्पोरेट लॉ पे या आईपी पे भी काम किया था, बट ट्रेडमार्क्स पे स्पेसिफिकली नहीं किया था। और तो उस पर्सपेक्टिव से भी कभी कभार लोगों को, मतलब लॉयर्स को ही एक नया ब्रांच ऑफ लॉ सीखने की इच्छा होती है और उसमें अपनी एक्सपर्टीज डीपन करने की इच्छा होती है। तो उन लोगों के लिए भी दिस कोर्स विल बी हेल्पफुल। एंड आजकल विद द प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एआई, एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ कॉपीराइट कंपोनेंट। तो ये जानना काफी यूजफुल रहेगा फॉर अ वैरायटी ऑफ पीपल। वाइब का जहां तक सवाल है, तो वाइब विल ब्रॉडली बी professional, but relaxed enough for people to feel comfortable. अगर सवाल पूछने हैं तो सवाल पूछें। ये स्टूडेंट टीचर टाइप का मैं इक्वेशन नहीं रखना पसंद करूंगा। It will more be in the nature of co-learners coming together. Right, sir. So I also feel that copyright, as you said when you busted the myth for us, that it's not something that you need to register first. So I think it's just relevant for every one of us. Yes. Because we're writing down things, we're thinking, there are ideas, we need to understand that this is an original idea and this is probably not. So for that, I think everyone should know Copyright Act. And we're also interacting with so much content, sir. बिल्कुल। हम जानते हुए या ना जानते हुए कई बार कोई इन्फ्रिंजमेंट कर दे, हमें ही नहीं पता चलेगा। बिल्कुल। कि हमने किसी का यहाँ से कॉपी किया और वहाँ पेस्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दैट रिगार्ड ऑल्सो आई फील दैट फॉर एवरीवन हु इज इंटरैक्टिंग विद देयर मोबाइल फोन्स, देयर लैपटॉप्स, इन एनी विच वे विद द इंटरनेट, it's just needed for you. You're right, madam. I completely agree with you. So before we wrap this up, is there any advice that you want to give to young lawyers, young advocates with respect to copyright law or otherwise? देखिए, मेरे हिसाब से अवेयर रहना लीगल डेवलपमेंट से बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड अगर IP is something that is of interest to you or you see yourself building a career in that, तो उसमें आपको इन्फॉर्म रहना, अपना खुद का कंटेंट पुट आउट करना, नॉट जस्ट कि इस केस लॉ में ये हुआ, उस केस लॉ में वो हुआ, बट इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए, इस पर्सपेक्टिव से सोचना बहुत ज़रूरी है। एंड यू शुड बी विजिबल। लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, यू शुड मेक योर सेल्फ विजिबल, ताकि 4 लोग देखें आपका कंटेंट एंड अकॉर्डिंगली आपसे पूछें कि इस सिचुएशन में क्या होगा। हमेशा उसमें से काम नहीं निकलेगा, राइट? Absolutely, sir. But the moment that you are within the zone of consideration and people are thinking of you, I think that's a good place to be at as a starting point. Absolutely, sir. Thank you so much for this eye-opening conversation. Ji. This has been fun and informative, and I look forward to so many issues being resolved in your course. So for everyone who wants to step outside from the Bare Act and step into the real world, join the Copyright Mastery course, which starts on 19th of July. We're also offering 20% off right now. So grab your seat. There are limited seats left. It's a small investment towards a very long journey, which will give you so many fruits. एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा मैडम। Please, sir. The top 2 performers in the course will get an opportunity to intern with us also.
तो हमारी एक लॉ फर्म है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो हमारा नॉन प्रॉफिट है जो डिसेबिलिटी राइट्स पे है, बट एक फॉर प्रॉफिट लॉ फर्म है जिसमें आईपी इज अ कोर एरिया जिसपे हम काम करते हैं. द नेम ऑफ दैट लॉ फर्म इज जेन एक्सेस लॉ एसोसिएट्स. वैसे तो मेरा काफ़ी टाइम से आईपी पे काम चल रहा है, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड माय ओन फर्म इन दैट एरिया. जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जैसा आपने बताया कि आई हैड वर्कड विद हिम, तो उनके प्रेजेंस में भी फॉर्मली लॉन्च्ड दिस फर्म on 10th April 2025. So, under the banner of that firm, we will be offering internships to the 2 best performing students. So I hope that many of you will apply for the course and will join us in this journey. Thank you. Absolutely, sir. So we look forward to all the assignments also that you give us बिल्कुल. to assess us, and we look forward to a very interactive session. And as a person who had joined and moderated the trademark course with Rahul sir last time, I assure you it's going to be a fun time learning everything. And good value for money. Good value for money. देखो आप 5,000 rupees दे रहे हो, but so we're giving a 20% off actually. It's the 3,999, not 5,000 anymore. उसमें भी अगर आपको 1,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, but the value that you will get will be immense from that. It will be. एक डिनर भी अगर आप एक बड़े 5 स्टार में या 4 स्टार या 3 स्टार में भी 2 लोग जाके खाएं, it's that much money. That's true, sir. So I also feel that this course is so well timed. I think this is one thing that I wanted to touch upon, that we start on 19th July, and it's so well timed that there are 12 sessions which is spread over 3 months approximately. So by the time you are actually starting to look for internships between the November, December time, January time, you already have landed that internship with Rahul sir. And I'm happy to help with that also, because I have myself been associated with IP and corporate law firms before starting my own. तो और भी आपको firms में internships वगैरह में help चाहिए हो, as persons who are active in the course, मतलब active तो होना पड़ेगा. देखो मैं ऐसे किसी को भी recommend नहीं करूँगा, but if I feel that you are diligent and you are practicing, you are really invested in the area, I'm very happy to assist with that also. That's amazing. I don't know what you are waiting for. I'm going to register for this course right now. So grab your seat today. Thank you, everyone. Thank you so much, sir. Thank you.